Hello students, welcome in new classes. Today we will read about the non-finite verbs. Okay, as in last class I have taught you the phrase. In the definition of phrase we just heard these words non-finites. It is quite essential to understand the non-finite verbs in detail. Okay, so let's start. First of all, we see the definition of non-finite verbs. Okay, in non-finite verbs is the term used to describe a verb that is not showing tense. Okay, very simple. Non-finite verb. Okay, non-finite verbs are those verbs which is not presenting the tense. Means by seeing the non-finite verbs, we are not able to understand in which tense the sentence is. हमें समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस पार्ट्स फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है या प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड non-finite verbs. It is also not representing the number. Okay, कि what is the number of subjects? Either it is in plural or in singular. So non-finite verbs वो verbs होता है जो कि एक्शन मतलब कि किस स्टेट में है, पास्ट स्टेट में है या प्रेजेंट में है, जिसको शो कर नहीं करता है, वैसे verbs को हम क्या कहते हैं? non-finite verbs. ओके, non-finite verbs 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, gerund, infinitive, participle. Gerund, infinitive and participle. So all the types we read one by one. Okay, first of all we will discuss about the gerund. We will discuss about the gerund. Okay, we will discuss about the gerund. Gerund is, we have to understand this formula: verb plus noun is equal to verbal noun. Okay, gerund is the combination of verb and noun, and in short it is also called verbal noun. Okay, now we have to understand how verb and noun, basically the word is in verb form. जो word होता है, अगर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो वर्ब फॉर्म में होता है, लेकिन सेंटेंस में जो उसका फंक्शन होता है वो एक नाउन का होता है. जो सेंटेंस में उसका फंक्शन होता है वो एक नाउन का होता है. फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच यू नो वेरी वेल. ओके, वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड. ओके, एंड नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. ओके, डूइंग वर्ड प्लस नेमिंग वर्ड इज इक्वल टू वर्बल नाउन. और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑलवेज इन आईएनजी फॉर्म. हमेशा ये जो वर्ब होता है वो उसके बेस फॉर्म में आईएनजी लगा करके उसको ऐड किया जाता है. अंडरस्टूड? मीन्स gerund is the combination of verb and noun. Okay, in sentence it is a verb but it act or function as a noun is called verbal noun or gerund. Okay, it is always in the ing form, means base form में ing form लगा करके इसका जो होता है वो gerund बनता है. Okay, let's see the example and after that it will more clear. Smoking is dangerous. The simple word smoking is dangerous. ये वर्ड में smoking जो है वो as a verb, that is the verb. Okay, जिसमें हमारा ing जुटा है. ठीक है, smoke plus ing means verb plus ing. But in this basically sentence, what the word smoking is telling? It is presenting an action. No, it is not presenting an action. It is presenting the naming of one thing that is dangerous. That is the name of one thing that is dangerous. So in this way, smoking is a gerund. ये तो एक वर्ब है आपका, ठीक है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में है और ये क्या प्रेजेंट करता है? ये एक मतलब कि ऐसी चीज का नाम है जो कि हानिकारक है, जो कि खतरनाक है. अंडरस्टूड? तो किसी भी सेंटेंस में
अगर कोई वर्ब है और आईएनजी फॉर्म में है और सेंटेंस में उसका रोल, उसका फंक्शन एक नाउन की तरह है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? जेरेंट कहेंगे. ओके, definition is very clear. Verbal noun is called gerund. Okay, see the second example also. Here also reading is the name of one good habit. Okay, reading is a good habit और reading और smoking का tense से कोई लेना देना नहीं है. Suppose we can say reading once a favorite, once reading in the old days was a favorite pastime. अगर was लगाते हैं या is लगाते हैं, लेकिन ये reading आपका change नहीं होता. तो इस कंडीशन से ये नॉन फाइनाइट है. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव. एक्चुअली द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर ऑफ इन्फिनेटिव. इट इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, और वी कैन से द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड वर्ब, और सॉरी इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. ओके, किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, और ये ऑफन used with the prefix to. This point is very important कि often it is used with the prefix to. हमेशा ये prefix to के साथ use होता है, लेकिन not always. Often means प्राय होता है, अधिकांश होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है. तो simply we can say the formula 2 plus base form is equal to infinitive. 2 plus base form is equal to infinitive. Okay, बात समझ में आया? Let's see the example. I want to go. I want to go. The first is the example of to infinitive, and the second is the example of bare infinitive. Here go in both sentence, that is the form of first form of the first verb, or we can say the base form of the verb. I want to go. To go. Here in this word to go is to infinitive. Okay. If I tell I wanted to go, in that is in past tense. बट ये टू को हमेशा कभी भी टू वेंट नहीं होगा. यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है एरर ऑमिशन में कि टू के बाद अगर कोई वर्ब यूज हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में होता है. सपोज इन एरर ऑमिशन टू गोज या टू वेंट लिखा है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज द एरर इन द सेंटेंस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफन कम इन द एग्जामिनेशन. ओके, लेट हिम गो. लेट हिम गो, उसको जाने दो. Let him go. कभी let him went नहीं होगा. That is the bare infinitive. So in forms verb we have to understand infinitive always used in the base form. Gerund is always used in the ing form. Understood? Infinitive क्या होता है? Form verb का first base form होता है, और ये हमेशा to के साथ use होता है. Understood? और कभी कभी bare infinitive भी use होता है. Is that clear? Okay. Next and last is participle. Okay, participle and gerund to some extent both are same. Only the difference is adjective and only the difference is of adjective and noun. Okay, here adjective plus verb, or we can say verb plus adjective, is the verbal adjective. Okay, participle is that word which has the in the sentence which was basically a verb but it reacts as an adjective. वो sentence में verb तो होता है, लेकिन वो क्या होता है? As an adjective act करता है. It acts as an adjective, that is called verbal adjective or participle. Okay, it is also an example of non-finite form. Let's see the example. They laughed at dancing joker. In this sentence, they laughed at dancing joker. The word dancing was a participle. The word dancing is a participle, and the second word, the tree is laden with mango. The word laden is the example of participle. Now we see the in detail. देखो, they laughed at the dancing joker. Dancing एक वर्ड है जो कि जोकर को डिफाइन कर रहा है. जोकर क्या है? जोकर आपका नाउन है. तो जोकर, डांसिंग जोकर. ओके,
डांसिंग जोकर, यहाँ पे जोकर नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव विच डिफाइन नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका नाउन है, तो डांसिंग क्या कर रहा है? जोकर को डिफाइन कर रहा है, और आईएनजी फॉर्म में है तो ये पार्टिसिपल है। अंडरस्टूड? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्री इज लेडन विथ मैंगोज। द ट्री इज लेडन विथ मैंगोज। एक पेड़ है जो कि आम से लदा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ड लेडन है, ठीक है, वो मेन वर्ब में नहीं है, वो क्या है? पार्टिसिपल है। अंडरस्टूड? और ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज है। पार्टिसिपल स्पेशली 2 टाइप्स के होते हैं, डांसिंग जोकर और लेडन। जिसका लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अगर उसके लास्ट में en, et और es जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये उसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। ये पॉइंट नोट करिए आप कि अगर किसी पार्टिसिपल के लास्ट में आईएनजी हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, et, en और ed हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? Participle in short, we can say that is an adjective, sorry, that is verb but act as an adjective is called participle. कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपल दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा? पार्टिसिपल का ऑप्शन नहीं है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ना कि वर्ब होगा, ठीक है। इसी तरह का कोई जिरेंट का एग्जांपल है, अगर जिरेंट ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे आपका जिरेंट क्या होगा? नाउन होगा, वर्ब नहीं होगा कभी भी, क्योंकि सेंटेंस में जो फंक्शन जिस तरह का होता है वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन जिरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों ही आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है। जिरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वही डिफरेंस होता है जो कि नाउन और एडजेक्टिव में होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि अगर नाउन कोई आईएनजी फॉर्म का बेस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग के एज ए नाउन रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे जिरेंट होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा तो वो एज एन एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एडजेक्टिव होने के लिए नाउन का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिफाइन और डिस्क्राइब और टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग जोकर, जोकर यहाँ पे नाउन है। ब्रेकिंग न्यूज, हम लोग बहुत सुनते हैं ये वर्ड, ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज क्या है आपका? नाउन है, और ब्रेकिंग क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल। अंडरस्टूड? तो यही है मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ओके। और रियली एक ओके, और अगर पास्ट फॉर्म में ed, en ये एक पॉइंट है जो कि आपको नोट करवा दिए हैं, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स, स्पेशली ये क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स? ऐसे वर्ब्स जो कि जिसका टेंस या नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिएगा आप जरा, ठीक है। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू।